Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear friends, how are you? I will hope you will all fine. My dear friends, today we will start third part of the chapter whose name is Salt and its Types. Chemistry 10, chapter number 10, lesson number 27. And today's our topic is salt and its preparations, salt and its properties. After this we will study their preparations in the next classes, and at the end of the day we will study about the uses of salts. My dear friends, salts are formed by the neutralization of acid and base. Salts are formed by the neutralization of acid with a base. For example, look here, this one is the acid and that one is the base. That is the base and it is acid. When they react with each other, they will form a salt and water. This process is called neutralization, in which acid and base both loses their properties and they will form salt and water. Its name is sodium chloride, salt and water. The real name is, this one is hydrochloric acid, this one is sodium hydroxide, this one is salt, sodium chloride, this one is water. Water is, here is also water. So my dear students, acids are, when acids reacts with base, they will form salt and water. This is called neutralization. Salts are formed by the neutralization of acid and base. Now my dear friends, salts are formed by two ions. One is called positive ion, and positive ion is also known as cations. Positive ion is also known as cations. Similarly, salts consist of a negative ion. Negative ion. Negative ion is also called anion. Also called anions. My dear student, look carefully. A salt, for example, look here. It's a salt, NaCl. NaCl. This one is a salt. This salt consists of two ions, positive ions and negative ions. My dear student, look carefully. This positive ion, my dear friends, look carefully. This positive ion of salt and this negative ion of salt. Look carefully these two things. My dear friend, always the positive ions of a salt, positive ion of a salt. Positive ion of a salt always come from a
base, always come from a base. Therefore, positive ion is called basic radical. Okay, my dear friends, positive ion always come from a base. Therefore, it is called basic radical. On the other hand, my dear friends, the negative ion which is also called anion, always come from an acid. Therefore, it is called acidic radical. Look, my dear friends, HCl. This negative ion of a salt always come from a acid. This negative ion come from an acid. Therefore, this negative ion is called acidic radical, and this positive ion of a salt come from a base. Therefore, it is called basic radical. One more thing, my dear friend, basic radical is always a metal, and acidic radical or negative ion of a salt is always a non metal. माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लीजिए, साल्ट जो होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव पोर्शन जिसे केटाइन कहते हैं, एक नेगेटिव पोर्शन जिसे एनाइन कहते हैं। पॉजिटिव एंड को केटाइन और नेगेटिव एंड को एनाइन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका केटाइन होता है वो हमेशा एक बेस से आता है, ठीक है जी, बेस से ड्राइव होता है, इसलिए उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो आपका एनाइन होता है वो हमेशा एसिड से आता है, इसलिए उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है जी। और माय डियर फ्रेंड्स, साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा एक मेटल होती है, और जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा एक नॉन मेटल होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं जी। इस टेबल देखिए, इस टेबल में साल्ट्स के बनने के तरीके बताए गए हैं जी। एक टेबल है जिसमें शो किया गया है कि एक मेटल एक एसिड से मिलती है और साल्ट बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए तो आपके मेटल का नाम है सोडियम। जब सोडियम मेटल जिसे Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलती है जिसका सिंबल HCl होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स साल्ट बनाता है सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कहते हैं। ऐसे देखिए सेकंड एग्जांपल, पोटाशियम मेटल है जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, K उसका सिंबल है जी। और नाइट्रिक एसिड एक एसिड है जिसे HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला है जी। और साल्ट बनता है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो मेटल और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं जी? साल्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स है मेटल का नाम, देखिए जी, जिंक मेटल है। जब जिंक मेटल जिसे Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और एसिड है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो माय डियर स्टूडेंट्स साल्ट बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम एक मेटल है। जब कैल्शियम मेटल फास्फोरिक एसिड से मिलती है जिसका फार्मूला है H3PO4, तो माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सिल्वर मेटल है। सिल्वर मेटल को Ag
से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्जेंटम इसका नाम होता है जी। माय डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड एक साल्ट है, एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, ये एक साल्ट बनाता है, इसका नाम है जी सिल्वर एसीटेट। ये माय डियर स्टूडेंट सिल्वर होता है और ये एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट CH3COOH CH3COOAG, इसे सिल्वर एसीटेट पढ़ते हैं जी, सिल्वर एसीटेट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साल्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट करेंगे जी। हम साल्ट की पहली प्रॉपर्टी है कि साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, साल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं एंड दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी कोई ख़ास एंगल्स और ख़ास शेप्स होती हैं, फिक्स शेप्स होती हैं। दे हैव डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट एंगल एंड साल्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ आयनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्ट की सेकंड प्रॉपर्टी है बिकॉज सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, देयरफॉर दे हैव हाई melting point and high boiling point। My dear friends, साल्ट्स चूँकि आयनिक कंपाउंड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ हाई होते हैं। My dear friend, one most important property of the salt is that some salts have water in their crystals. Some salts have water in their crystals known as water of crystallization, water of crystallization, and this water is written with the formula of acid, with the formula of salt। My dear students, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को साल्ट के फार्मूले के साथ लिखा जाता है और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये साल्ट्स की शेप को क्या करता है जी, मेंटेन करता है। ये साल्ट की शेप को क्या करता है जी, मेंटेन करता है। माय डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं इसकी। 2 एग्जाम्पल है इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जी कॉपर सल्फेट। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जी कॉपर सल्फेट। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टल से लगाएंगे जी, वो होते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने साल्ट के फार्मूले के साथ लिखा है और इन वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट साल्ट। ऐसे माय डियर स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है जी हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जी, कैल्शियम सल्फेट। माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए मैंने कैल्शियम सल्फेट साल्ट के फॉर्मूले के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख दिया है। माय डियर स्टूडेंट,
ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं जी, ये स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं जी, स्पेसिफिक होते हैं फॉर ईच साल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जी, जो साल्ट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं जी, वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। हमारे साल्ट्स क्या होते हैं जी, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं कि जो हमारे साल्ट्स होते हैं, ऑल्दो दे डोंट हैव सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, salts don't have equal number of positive and negative ions, positive and negative ions। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साल्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते बट लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो साल्ट्स होते हैं दे हैव इक्वल नंबर ऑफ, बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हम एक एग्जांपल से फॉलो करेंगे। मैंने कहा कि जो साल्ट हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, साल्ट हमेशा क्या होते हैं जी, न्यूट्रल कंपाउंड्स। इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कभी इक्वल होते हैं, कभी इक्वल नहीं होते। लेकिन जो इनके नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, चार्जेस वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब हम इस बात को एक एग्जांपल के साथ प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर एक साल्ट है, देखिए इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जो पॉजिटिव आयन है उसकी तादाद 1 है, एक सोडियम आयन है, और क्लोराइड आयन जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो भी कितना है, वो भी 1 है। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो मैंने कहा था सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, तो इस केस में मैंने सेम रख लिए हैं। अब इसी मिसाल को यहाँ पे ले आइए। मेरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं जी, +1। ये पॉजिटिव चार्ज मेरा +1 है जी, और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं जी, वो -1 है। तो वो तो मैंने कहा था ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है जी। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं ये भी 1, ये भी 1, पॉजिटिव आयन भी एक है, नेगेटिव आयन भी एक है, और जो चार्जेस है वो +1 है, -1 है। तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया कि साल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तादाद इक्वल हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यहाँ पे है। ठीक है। लेकिन चार्जेस हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल नहीं होंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। ये एक साल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव आयन है एल्यूमिनियम, इसकी तादाद 1 है। एल्यूमिनियम Al+3 1 है, यानी कि हमारा पॉजिटिव आयंस 1 है, जबकि जो आपका नेगेटिव आयन है Cl-1 वो कितने हैं जी, वो 3 हैं। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देखिएगा, एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। अब एल्यूमिनियम हमारे पास 1 है,
इनके पॉजिटिव आयंस हमारे पास 1 है और नेगेटिव आयन हमारे पास 3 हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो मैं लिखता हूँ इस साइड पे, ये एक्चुअली क्या होते हैं, आपके तादाद होती है आयंस की। अब यहाँ पे आयंस की तादाद इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 3। माय डियर स्टूडेंट्स 1 3 की इक्वल नहीं है। तो देखिए, डोंट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए चार्जेस देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, तो 1 को +3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा +3। तो पॉजिटिव आयंस कितने हो गए, +3। अब नेगेटिव आयन 1 लिखा हुआ है, क्लोरीन को नेगेटिव 1 है, लेकिन नेगेटिव 1 टोटल 3 हैं, तो 3 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -3। तो आयंस की तादाद तो इक्वल हो गई। आयंस की तादाद इक्वल नहीं है, लेकिन चार्जेस क्या हैं, दोनों के ऊपर इक्वल हैं। इससे माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि इसके चार्जेस इक्वल हैं, लिहाजा न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी, एक बार फिर गौर से समझ लीजिए इस बात को। एल्यूमिनियम आयन जो है, जिसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, वो तादाद में 1 है, और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव जो कि तादाद में कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब ये है, जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को ब्रेक करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम आयन 1 हासिल होता है और क्लोराइड आयन हमें 3 हासिल होते हैं। तो इनके नंबर्स आयंस के जो है वो इक्वल नहीं हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। जबकि माय डियर स्टूडेंट, जब हम चार्ज निकालेंगे इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि इसके चार्ज को, इसके वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने इसका नंबर है। तो +3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +3 आंसर आ गया, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इनके नंबर्स ऑफ आयंस तो इक्वल नहीं हैं, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, at the end of the lesson we will give you a task of the today। सब होमवर्क डायरी भी कहते हैं जी, डेली डायरी। इसमें आप सबसे पहले करेंगे जी, सॉल्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर माय डियर स्टूडेंट्स आप एसिटिक रेडिकल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक टेबल ड्रा करेंगे जिसमें आप शो करेंगे कि कैसे आपके मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, सॉल्ट्स बनाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल आप यहाँ पे 5 मेटल्स के नाम लिखेंगे, 5 एसिड्स के नाम लिखेंगे, और फिर 5 आपके पास कितने बनेंगे, सॉल्ट्स बन जाएंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बताएंगे किसकी, सॉल्ट्स की। ठीक है जी, इसके अंदर एक शॉर्ट आता है जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और एक 5 पॉइंट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4, वो भी एज ए शॉर्ट आ सकता है, प्रूव दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है जी, साबित कीजिए सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।